हाँ जी, आज किसकी प्रेजेंटेशन है? रुशाद। मैम राहुल यस मैम। मैम शायद आउटसाइड ओनली, इनसाइड ओनली, ब्लैक कलर की डायरी जो है ना। हाँ जी, मैं अभी आपको दे देती हूँ स्क्रीन शेयर की, राइट? तो हु विल स्टार्ट फर्स्ट? मैम राहुल मैं राहुल। करूँगा। ओके ओके राहुल, यू कैन स्टार्ट। Are you able to share your screen now? यस मैम यस। दिखाई दे रहा है ये? हाँ जी दिखाई दे रही है। यस, तो गुड मॉर्निंग ऑल। एक मिनट जी, मैं ना एक बार रजिस्टर ले आऊं, मैं आपके मार्क्स लगाऊंगी उस पे। 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। ओके। हाँ जी, हाँ राहुल, यू कैन स्टार्ट नाउ। राहुल आज Okay, दे रहा है। good morning everyone. I'm Ra today I'm Rahul Chaudhary. Today I'm here to present my PPT on the topic of AI and training algorithm. Now we can start. AI and training algorithm architecture of artificial neural network or index algorithm ANN training 5 algorithm to train a ANN. Perception training rule, perception delta rule, difference between perception and delta rule. What is algorithm ANN training? The gradient descent, also known as steepest descent, is the most straightforward training algorithm. It requires information from the gradient vector and hence it is a first order method. What do you mean by first order method, Rahul? Ma'am, first order method जैसे Hello, yes ma'am. what is this first order method? मैथ पे तो नहीं पता मुझे। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं ना? whatever is there in your PPT, no, you should know about Yes that. ma'am. ठीक है, और ये This सारे five of मेथड्स जो आपने यहाँ दिए हुए हैं, yes ग्रेडियंट ma'am. डिसेंट, तो ठीक है, हमने पढ़ा भी है, मैंने आपको कराया भी है, एंड इट इज यूज्ड इन बैक प्रोपगेशन नेटवर्क्स. But the other methods, Newton method, conjugate gradient, quasi-Newton, Levenberg, और Marquardt, 11 yes ये ma'am. तो मैंने, ये ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमने ये किए भी नहीं है. okay. कोई बात नहीं, चलो, यू लीव एक्सेप्ट है ना, जस्ट कवर ग्रेडियंट डिसेंट एंड लीव अदर मेथड्स.
Okay, ma'am. Continue, please. Continue. Just cover about the gradient descent method. Okay, ma'am. The 5 algorithm to train a neural network: gradient, Newton conjugate, quasi-Newton method, or Levenberg. What do we know about gradient and conjugate? What is perception training rule? Perceptron learning rule states that the algorithm would automatically learn the optical weight coefficients. The input features are the multiply with these weights to determine if a neuron fires or not. In the context of supervised learning and classification, this can be used to predict the class of a sample. What is perception training rule and what is the concept of perception? A perception is a simple model of a biological neuron in an artificial neural network. The perceptron algorithm classify patterns and groups by finding the linear separation between different objects and patterns that are received through numeric or visual input. What is perception delta rule? Global minimum initial work. Delta rule can be understood by looking it as training and unthreshold perception, which is trained using gradient descent. The linear combination of weight and the input associated with them act as an input to activation function, same as in the previous one. It is the output of linear unit for training example. Can you explain about this gradient descent? यहाँ आपने ये इमेज जो डाली हुई है ना, जे ओमेगा जे डब्ल्यू है या डब्ल्यू के बीच में जो आपने ग्राफ डाला हुआ है. So we take the initial weight and then gradient किसका हमें compute करना है? What is this gradient descent? आपने पढ़ा है gradient descent के बारे में? नहीं पढ़ा था मैम. नहीं पढ़ा था. नहीं पढ़ा था या यहीं पढ़ा था? क्या कह रहे हो? मैम नहीं पढ़ा. नहीं पढ़ा ना, तो पढ़ना चाहिए था ना आपको. Gradient descent is when, ना, if I know. ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जो होता है लोकल मिनिमम. हाँ, तो ये पढ़ना है ना. तो हम gradient, we take the error function. ठीक है, I know the target value and I know the actual output. उन दोनों के बीच जो error है, ठीक है, if I want to minimize that error, ठीक है, वो error को मुझे minimize करना है, जो actual output है और जो मेरी target है. So if I want to minimize that error, then we use gradient descent. So gradient is derivative. So we take the partial derivative. जैसे हम application of derivatives में आपने पढ़ा होगा, to find out the local minima and maxima, we use the partial derivatives. So it is similar to that. मैंने इसका जो एक पीपीटी में इसके लिए I have shared one link also. पीपीटी में ये gradient descent का, वहां से आप पढ़ लें इसके बारे में कि how we can reduce the error, ना, जो minimum error हो सकती है. We take the gradient and then we find out the minima to get to the minimum global minimum value. ठीक है, जो मिनिमम एरर हो सकती है वहां आके फिर हम छोड़ देते हैं. दैट इज द मिनिमम अचीवेबल एरर. सो यू जस्ट रेफर द पीपीटी. आई हैव शेयर्ड इट ऑन क्लासरूम आल्सो. सो देयर इज ए लिंक, आई थिंक इन बैक, जहां बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम दिया हुआ है, उससे पहले या बाद में कहीं एक लिंक मैंने दिया हुआ है ग्रेडियंट डिसेंट का. वहां से पढ़ लें आप ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में. ठीक है, ऑल ऑफ यू, सबके लिए है ये. तो What are the main differences between perceptron learning and delta rule? Suppose a solution with zero error exists. The perception learning rule finds a solution in finite time. The delta rule does not converge. Objective function is not equal to the number of mistakes. Yeah. What is the delta rule used in ANN? The delta rule. What is the delta rule used in ANN?
Artificial neural network is a specific kind of backpropagation that assists in refining the machine learning artificial intelligence network, making association among input and output with different layer of artificial neurons. The delta rule is also called the delta learning rule. Thank you. So can you just tell me what are the drawbacks of perceptron learning rule? Drawbacks of परसेप्ट्रॉन लर्निंग, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे ना परसेप्ट्रॉन लर्निंग के? परसेप्ट्रॉन लर्निंग के नहीं पता। जैसे नहीं, अच्छा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट लीनियर सेपरेबिलिटी? नहीं, कोई बात नहीं। कि इसका न्यूमेरिकल किया है आपने परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग का? मैम परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग का मैम नहीं किया। कर लेना, ठीक है। आपने पेपर देखा होगा बैक प्रोपगेशन के और परसेप्ट्रॉन के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, नॉट द एंटायर न्यूमेरिकल, ठीक है, बट इफ यू नो द एल्गोरिथम you can stop sharing now. I will share my screen. So you can just मतलब what I was expecting वो इसमें नहीं था। एक मिनट, yes, is this visible to you? This is what I was expecting, है ना? परसेप्ट्रॉन के बारे में जब आप बता रहे हो तो मैं ये आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, ये एल्गोरिथम, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो जब आप परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ें तो ये एल्गोरिथम जरूर पढ़ना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आएंगे वो यही कुछ जैसे आपको दिया हुआ है, ओके इफ द इनिशियल वेट्स इज दिस एंड दिस एंड टारगेट इज दिस, तो न्यू वेट क्या होगा? इफ यू आर गिवन दिस वाई इन, इफ यू आर गिवन द इनिशियल वेट्स एंड इनपुट्स एंड बायस एंड टारगेट, ठीक है, अगर आपको ये सब दिया हुआ है और आपको ये निकालना है W1 न्यू एंड W1 ओल्ड, W1 न्यू एंड बी बायस न्यू, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम है इट इज इम्पॉर्टेंट, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल डिस्कस अबाउट दिस एल्गोरिथम आल्सो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब आप पढ़ें तो ये एल्गोरिथम जरूर पढ़ें, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल मैंने क्लास में भी कराया था, implementing and function using perceptron networks, ठीक है। And one of the drawbacks of perceptrons is that it is applicable to the problems which are linearly separable, ठीक है, where I can separate the positive responses and negative response by a line and there is a decision making line. लीनियर सेपरेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपके पेपर में भी है ना, जहां वो लाइन की इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, तो जो जैसे एंड गेट है, इट इज ए लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक सिंगल न्यूरॉन से मैं एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ यूजिंग परसेप्ट्रॉन, बट इफ आई वांट टू इम्प्लीमेंट XOR, so XOR gate is not linearly separable, so we cannot implement it using a single neuron, so I need to have more than one neurons, 2 layers होंगी। There is a problem also in your book, जो इसके लिए बुक जो मैं रेफर कर रही हूँ,
ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स है ना, मतलब इस तरह के क्वेश्चन। परसेप्ट्रॉन जैसे ये एंड फंक्शन है, तो अगर आप देखो, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता फिर तो ये पूरा न्यूमेरिकल भी आ सकता था, बट बिकॉज द पेपर इज ऑब्जेक्टिव, तो पूरा न्यूमेरिकल ना आके ओनली वन पार्ट। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक इनिशियल वेट दिया कि ओके x1 इज दिस, x2 इज दिस एंड बायस इज दिस, टारगेट दिया हुआ है, नेट इनपुट निकालनी है और आपको फाइनल वेट निकालना है। तो मतलब ये जो टेबल है इसका सिर्फ एक रो, यू हैव टू फाइंड आउट ओनली वन रो ऑफ दिस टेबल। इस तरह का न्यूमेरिकल, बैक प्रोपगेशन का एक इस तरह का न्यूमेरिकल आया भी हुआ है, तो ये आप जरूर कर लें। ठीक है, चलो, हु इज नेक्स्ट? अरुषाद, अरुषाद आप देंगे अगला? यस मैम। चलो, मैं ही कह रहा था, पीपीटी तो लैपटॉप में, अब जैसे ही मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ ना, तो वो नेम के आगे नल लगा रहा है अपने आप ही। तो व्हाट्सएप कर दो, क्लास ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दो, मैं खोल दूंगी। नहीं, व्हाट्सएप तो मैं कर, हाँ एक बार इससे करके देखता हूँ। ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आप क्लास ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दो। एक सेकंड, अभी करता हूँ। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है, मैं यहाँ उसको डाउनलोड करके आई विल ओपन इट हियर। आप भेजो मुझे, मैं खोल दूंगी। चंदन आप भी कर आज ही दिया मैम। दोगे ना? अच्छा, भेज दिया आपने? अच्छा अच्छा, आप फजी यस मैम, रिलेशंस के बारे में दे रहे हो? ये वाला टॉपिक था ना मेरा मैम? हाँ हाँ, फजी रिलेशंस है ना आपका? यस मैम। फजी रिलेशंस। इसमें भी एडिट हो गया मैम, क्योंकि वो अपने आप ही नेम के आगे चेंज कर रहा है वो। नहीं, अब नहीं नहीं देखो, ये शायद, यही है, ये हाँ आपकी हाँ पीपीटी है, यही है मैम। यही हाँ है ना? यही है। हाँ, हाँ ये ये लोगो सेकंड हमारा स्लाइड। चेंज हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया इस पे। नहीं नाउ दिस इज चेंज नया रूप नहीं ट्रांसफॉर्मेशन इन था। इंजीनियरिंग एजुकेशन। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना है, लोगो हमारा जो है ना वो चेंज हो ठीक गया है। है। मैंने अगर आपको कभी कुछ भेजा होगा, हाँ मैंने मैनुअल में शायद लगाया हुआ है नया लोगो। ठीक है, या मैंने सिनॉप्सिस के का फॉर्मेट शायद आपको एक बार भेजा था, उसमें भी नया लगा हुआ है। What if any document which I have shared is having a logo, then the logo is the updated one. ओके मैम। So fuzzy relations by Mr. Rushad. Okay, okay. Start. You can start with. मैम इसमें एक सेकंड। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. इसमें what is fuzzy relation? Fuzzy relation relate element of one universe to those of another universe through the Cartesian product of two universes. मतलब जो फजी रिलेशन है, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो एक यूनिवर्स, मतलब लेट वो एक्स है तो उसको अनदर यूनिवर्स के साथ रिलेट, एलिमेंट को रिलेट करते हैं, तो हमारा दूसरा यूनिवर्स वाई है कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू। और ये इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सम एक्सटेंट और अनरिलेटेड। A fuzzy relation is a fuzzy set defined on the Cartesian product of classical set x1 x2 upon xn may have varying degrees of membership who are x1 x2 xn within the relation that is
R x1 x2 xn is equal to mu r x1 x2 xn by x1 x2 xn. मैम स्लाइड चेंज करना, नेक्स्ट स्लाइड. गरम गरम आपको यार ये जब ठंडा लगता है हाँ ठीक है इट्स ओके. A fuzzy relation between two set x and y is called binary fuzzy relation and is denoted by R of x and y, xy. A binary relation R x y is referred to as bipartite graph when x is not equal to y. A binary relation on a single set x is called directed graph or digraph. This relation occurs when x is equal to y and is denoted as rxx or rx square. फिर इसके बाद तो मैम ये मैंने x के बाद ये ऊपर आना था सिंबल, बट वो उसमें हो नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर कोई आगे बात लगा नहीं. दिया ये. कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. फिर ये मैम इसको डिनोट करने का वो x और y वो दे रखा है x1 x2 अपॉन xn एंड y के लिए y1 y2 टिल ym. हाँ, ये जो तो इसका मेंबरशिप, हाँ उस दिन मैं भूल गई थी, मयंक भी है यहाँ. ये मयंक, ये देखो है ना, रुशाद ने म्यू सिंबल यहाँ लगाया हुआ है. मयंक है क्लास में? हाँ ही इज देयर. मयंक, मयंक, ओके ही इज नॉट इन द क्लास. कोई बात नहीं, ही कुड नॉट फाइंड दिस सिंबल. आप हो यहाँ मयंक? यस मैम है ना, आपने यू लगाया हुआ था म्यू की जगह, बट यस मैम. ये रुशाद ने देखो सिंबल लगाया हुआ है. यू कैन फाइंड दिस सिंबल इंसर्ट टैब में जाके. इंसर्ट टैब में आते हैं सारे सिंबल. हाँ ठीक है. और ये जो आपने जैसे रुशाद यहाँ आर, जो ये मेंबरशिप है आर x1 y1, हम इसको सबस्क्रिप्ट में लगा सकते थे. मैंने जैसे आपने देखा होगा ना, मैंने नोट्स में सबस्क्रिप्ट में लगाया हुआ है, आपने तो साथ में ही कर दिया ना. तो इसको मैं रेज टू द पावर 2 या सबस्क्रिप्ट कर सकती हूँ. वो ऑप्शन भी हो रहा था, इसलिए वो फिर मैंने ऐसे कर हाँ दिया. कोई बात नहीं. आई एम जस्ट शेयरिंग दिस थिंग बिकॉज कल को आप जो है कहीं जॉब करोगे, फिर प्रेजेंटेशन बनाओगे, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप अगर मान लो मिस्टेक अभी मेरे सामने, तो क्या है ना कि एवरी मिस्टेक इज एक्सेप्टेबल. यस मैम. आप कोई भी गलती करें, मेरे लिए वो सब एक्सेप्टेबल है. बट जब आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे तो फिर वहां गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं होती. यस मैम. ठीक है चलो कंटिन्यू. फिर जो ये फजी रिलेशन जो हमारा है ये आर एक्स वाई, इसको हम एन क्रॉस एम मैट्रिक्स में भी ऐसे शो कर सकते हैं. जैसे ये म्यू आर x1 y1 म्यू आर x1 y2 अपॉन ym, और फिर ऐसी रो वाइज जब आएंगे तो म्यू आर x2 y1 अपॉन म्यू आर xn y1. ठीक है. तो अब एक चीज यहाँ हमें ये चीज याद रखनी है, दैट ए फजी रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट्स x एंड y इज ए मैट्रिक्स. ठीक है, इट इज ए मैट्रिक्स. कोई भी दो फजी सेट्स हैं, हाँ मेरे पास कोई भी दो फजी सेट्स हैं, उनका जब भी हम रिलेशन निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो देन इट विल बी ए मैट्रिक्स. यस मैम. x क्रॉस n है तो x में जितनी भी एलिमेंट्स हैं और y में जो एलिमेंट्स हैं n m, so n क्रॉस m will be the size of matrix. So continue. और ये मैट्रिक्स जो फजी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो उसे मतलब फजी मैट्रिक्स भी हम कहते हैं. एंड और जो फजी रिलेशन आ रहा है इज द मैपिंग फ्रॉम द कार्टेशियन स्पेस x क्रॉस y टू द इंटरवल 0 to 1 where the mapping strength is expressed by the membership function of the relation for ordered pairs from the two universe mu r x y. मैम स्लाइड चेंज करना आ गया. फिर मैम इसमें आता है कार्डिनलिटी ऑफ फजी रिलेशन. The cardinality of fuzzy sets on any universe is infinity. Hence, the cardinality of fuzzy relation between two or more universes is also infinity. This is because of partial membership in fuzzy set and fuzzy relation. ये partial membership की वजह से जो fuzzy sets और relation है, इसकी cardinality यूनिवर्स infinity होती है हमेशा. उसके बाद
domain and range. Domain, the domain of the fuzzy relation Rxy is the fuzzy set domain Rxy having the membership function as mu domain Rx is equal to maximum of mu r xy, that all x belongs to the capital X membership function. ये x जो है, और the range of fuzzy relation R xy is the fuzzy set range having the membership function as mu range R y is equal to maximum mu R xy, that all y belongs to the set. इसके बाद मैम आता है ऑपरेशन ऑन फजी रिलेशन. The basic operation on fuzzy sets also apply on fuzzy relation. Let R and S be fuzzy relation on the Cartesian space xy. The operation that can be performed are union, intersection, complement, and containment. In union में तो हमारा हो जाता है mu R union S xy, which is equal to maximum of mu R. It is same as xy. sets. हाँ, जैसे fuzzy sets में union निकालते हैं, ऐसे ही हम sets fuzzy में तो- relations का निकाल सकते हैं. Yes. ऐसे इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और कंटेनमेंट. फिर इसका मैम आता है फजी कार्टेशियन प्रोडक्ट. फजी रिलेशन आर इन जनरल फजी वी कैन. फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर हम डिफाइन करते हैं. लेट ए एंड बी बी टू फजी सेट डिफाइंड ऑन द यूनिवर्स एक्स एंड वाई. देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी विल रिजल्ट इन फजी रिलेशन आर, which is contained in full Cartesian product space, that is A cross B is equal to R. ये सबसेट का दो C जो है सबसेट का है, वो भी साइन नहीं मिल रहा था ना, तो उसको फिर X और उसमें कर दिया था. Okay. So this is that symbol, containment वाला symbol आएगा ना यहाँ जहाँ आपने C लगाया है. वो वाला सिंबल मिला नहीं, तो फिर मैंने फिर ये C लगा दिया था. Where the fuzzy relation R has a membership function mu R xy, which is equal to mu A cross B xy, which is equal to minimum of mu ax and mu by. The Cartesian product defined by A cross B is equal to R is implemented in the same cross product of two vector. मतलब इसका cross vector की तरह ये two product. फिर आता है मैम 2D fuzzy relation. ये 2D fuzzy relation करना था वैसे ही, इसमें डालना है मैम नहीं ये स्लाइड में. नहीं नहीं रहने दो फिर. रहने दो. अच्छा फिर ये मैम आपने आपने वो क्वेश्चन. क्वेश्चन दिया था ना हाँ, 7th 8th में, तो इसमें ये जो अभी हमने इंटरसेक्शन का करा है वही वाला, ये तो मैक्सिमम R x y s. सेम क्वेश्चन इसमें आया हुआ. हाँ, फिर इसमें जो हाँ, हमें R and S का भी है. हाँ हाँ ये ना उसमें जो मैंने आपको भेजा है उसमें यहाँ देयर इज समथिंग मिसिंग हियर. कहाँ पे मैम? ये ना यहाँ ये एक सिंबल आएगा ऐसे सर्कल. मैंने वो बाद में देखा, मैंने अपनी कॉपी में तो चेंज कर लिया. ये यहाँ सिंबल आएगा. आपका आंसर तो सही है वैसे, योर आंसर इज Yes, करेक्ट, द आंसर दैट यू हैव रिटन, बट यहाँ सिंबल आएगा आर, बीच में छोटा सा सर्कल एस. सो दिस इज मैक्समिन कॉम्पोजिशन. ओके, इसमें R के बाद लगाना है वो, मतलब कहाँ पे? हाँ ये यहाँ आएगा ये सिंबल, ये यहाँ. ठीक है, एंड दिस इज आर, मतलब ये होगा आर, एंड देन दिस छोटा सा सर्कल वाला सिंबल एस. सो दिस इज मैक्समिन कॉम्पोजिशन. ये आंसर आपका सही है मैक्समिन कॉम्पोजिशन का. ठीक है. ओके मैम. 8th क्वेश्चन मेरे को मैम इसमें समझ नहीं आता, तो वो वाला मैंने करा नहीं था फिर. कौन सा 8th क्वेश्चन? इफ R M and S are fuzzy relation, then ये एक मिनट में क्वेश्चन खोल लूं. अच्छा 8th क्वेश्चन ना. हाँ, yes आप जो मैंने नोट्स भेजे हैं ना, नोट्स इसमें. एक मिनट, मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, मैं बता दूंगी वो आपको अभी. ये और ये 26 वाला तो हाँ नहीं, ये तो सिंपल, ये तो फजी ऑपरेशंस का क्वेश्चन है ना. ये वाले दिए थे ना आपने 7 8 9 और एक 26. नहीं एक मिनट, 6
7, 8, 8, 9 9, और ये 26 10 भी तो बताना था ना 10। रुको बस यहीं तक है। ओके, 1 मिनट में क्वेश्चन पेपर शेयर करती हूँ। क्वेश्चन पेपर। हाँ ये रहा 10th मेरे वाला पास नहीं करा 10th है, वाला एक वाला सिर्फ मिनट। 9 तक था। एक मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये 8 के बारे में आप कह रहे हो ना, 8 क्या होगा, यस मैम। है ना? 1 मिनट में बताती हूँ इसका आंसर। जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं ना फजी रिलेशंस वाले, फजी रिलेशन के यस मैम। है ना, मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें। उसमें दिया हुआ है पेज नंबर 351 पे। ठीक है, ये 351 इफ मतलब देख लेना आप नोट्स, उसमें कुछ हैंड रिटन है, कुछ पेजेस हैं। यस मैम। पेज अच्छा नंबर 3, हाँ 351 मतलब 351 मेरे जो नोट्स है ना उसमें पेज नंबर 351 है एक, उस पे दिया हाँ हुआ ये है मिल ये। गया मिल गया। मिल हाँ गया? मिल गया मिल गया मिल गया। तो RSM इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, आर यस मैम ये वाला। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके ये करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज फजी कॉम्पोजिशन की दी हुई हैं। R और S का अगर मैं मैक्स मिन कॉम्पोजिशन लेती हूँ, देन इट इज नॉट इक्वल टू द मैक्स मिन कॉम्पोजिशन ऑफ S एंड R। ठीक है, फिर R और S का अगर मैं मैक्स मिन कॉम्पोजिशन लूं और फिर उसका इनवर्स लूं, देन इट इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, अभी मैंने पेन कनेक्ट नहीं किया यस हुआ मैम। ना, बट इफ यू सी दी प्रॉपर्टीज, अगर मैं इन दोनों का इनवर्स लेती हूँ, इनवर्स, देन दिस इज इक्वल टू दी S इनवर्स और R इनवर्स का मैक्स मिन कॉम्पोजिशन। तो 3 प्रॉपर्टीज आर गिवन हियर, उसी में से एक प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फिर जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर ये 10 10 तो है ना, मिल जाता मेरे को ये भी लगता है फजी 7 रिलेशंस तो। का ही क्वेश्चन है। ठीक है, x क्रॉस y मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो x कितना, 1 2 3, सो 3/2 a इज द आंसर। यस क्वेश्चन मैम नंबर 10 जो है ना, हाँ यस मैम। इसका आंसर a है। ठीक है, एक क्योंकि वो क्वेश्चन, x के 3 एलिमेंट और y के 2 थे, 2 हाँ क्रॉस 2 हाँ मैट्रिक्स हो यस, गया। तो जब भी हम जो अभी ऊपर कार्टेशियन बताया प्रोडक्ट था। लेंगे तो वो 3/2 मैट्रिक्स आएगी, यस मैम। है ना, ये और अभी ये बताया 26 भी था, का तो यस मैम इरशाद ने स्लाइड में था। बताया था ना अभी। हाँ यस मैम n क्रॉस m की फॉर्म में। हाँ हाँ हाँ, ये 23 क्वेश्चन जो है ना, ये फजी यस रिलेशन जो मैम। है, इट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये फजी रिलेशन जो है, इट इज ए ये कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यस मैम। ये भी यहाँ बता भी बताया था ऊपर। कंपोजिशन, और ये 26 का कंप्लीट। अच्छा ये तो हो गया था ना, कॉम्प्लीमेंट तो आप निकाल ही सकते हैं। यस मैम ये तो हो गया। बस मेरे ख्याल से यही हैं यही फजी थे बस, रिलेशंस के। 26 तक की था जो था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हाँ बस वहीं तक थे, बट फिर भी काफी क्वेश्चंस हैं फजी रिलेशंस के। आपने वो बताया था ना 3-4 क्वेश्चन करने थे तो वो हाँ थोड़े। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चंदन आप भी कुछ आज आपको भी तो देना था ना, यस मैम। तो अभी दोगे आप? हाँ मैम। चलो स्टार्ट करो फिर। अगर ये क्लास खत्म हो जाए ना तो दोबारा ज्वाइन कर लेना फिर। ठीक है, इस क्लास में अभी 5 ही मिनट बचे हैं, कोई बात नहीं, चंदन का भी हो जाने दो फिर आज ही। क्या टॉपिक है चंदन आपका? चंदन, हेलो मैम, आ रही स्क्रीन मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आपका टॉपिक बताओ ना। मैम बता रहे हैं। मैम ये मैम बैक अच्छा प्रोपोगेशन BPN, एल्गोरिथम्स। ओके ओके ओके। ये अगर क्लास खत्म हो जाए ना तो सब लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। गुड मॉर्निंग टू ऑल। I am here to present back propagation algorithms, multi-pattern model of field networks, associative memories, applications of artificial neural networks.
and it is perceptron, it's not perception. ये गलत मैम आपके उसमें सिलेबस में गलत लिखा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था आपको, इट इज परसेप्ट्रॉन। वहाँ परसेप्ट्रॉन ही लिखा मैम, वो नीचे हाँ वो उसमें। गलती से, हाँ नीचे भी मल्टीलेयर परसेप्शन मैम, लिखा edit गया, कर कोई दूंगा। बात नहीं, चेंज कर लेना। ये जो पीपीटीज है ना, ये आप अपलोड भी कर देना वहाँ क्लासरूम पे। मैम मैंने कर दिया अपलोड। आपने कर दी रुशाद, आपने कर दी? नहीं मैम, मैंने नहीं करी अभी। कर देना आज। राहुल आप भी कर देना, ठीक है? सब लोग अपलोड कर देना ये पीपीटीज अपनी क्लासरूम पे। Backpropagation algorithms. The backpropagation algorithms in neural network computes the gradient of loss function for a single weight by a chain rule. It efficiently computes one layer at a time, unlikely a native direction थोड़ा आप computation. इसको बड़ा कर सकते हो चंदन? ठीक है मैम? हाँ ठीक है। It हाँ, बस computes ठीक। the it computes the gradient, but it does not define how gradients is used. It generalizes the computations in delta rule. Consider the following backpropagation neural network example diagram to understand. Input X arrives through the pre-connected path. Second, input in modeled using real weights W. The weights are usually randomly selected. Calculate the output for every neuron from the input layer to the hidden layers to the output layers. Calculate the errors in the outputs. ये मैम फॉर्मूला है, error is equal to actual output minus desired output. Fifth, travel back from the output layer to the hidden layer to adjust the weights such that errors is decreased. Keep repeating the process until the desired output is achieved. Multi-layer perceptron model. Multi-layer perceptron is commonly used in simple regression problems. However, MPLs are not ideal for processing patterns with sequential and multi-dimensional data. A MPL strives to member patterns in sequential data. Because of it requires a large number of parameters to process multi-dimensional data. मैम ये नीचे मॉडल है इसका, input layer, first hidden layer, second hidden layer, output layer, and then output. So what is the difference between multi-layer perceptron and single layer perceptron? मैम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में मैम दो लेयर्स हिडन लेयर्स होती है कि उसमें मतलब दो ही बारी होंगी, दो से ज्यादा नहीं हो सकती? दो से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब मल्टी हो सकती है। और जो सिंगल लेयर होती है उसमें मैम फर्स्ट हिडन लेयर ही आती है। और एनी अदर डिफरेंस? और उसमें मैम जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन होता है उसमें मैम जो मल्टी डायमेंशनल डाटा होता है